So hey guys, we have come to the second part of the business and its environment second part. So let's see what is business environment. All external forces which have an important bearing on the functioning of the business. Any forces that is outside the business, maybe political, maybe raw materials, the consumption of materials or the raw materials which we receive from the producer, from a raw producer. Maybe the price of that raw material may be high. Then the political parties, taxation policies, demand, supply, demand of the product. That all uh, are included in the business environment. Business environment itself, how the business is going, how is it is good, how is the employers, how is the business going on, that is business environment. Usually offers immense opportunities for exploiting potential market and also possesses threats to the firm. Usually, business firms also has, as well as there is positive, there is negative. Every positive person has a negative personality too in them. It will be recessive. Every time good will be more and bad will be less. So that is there with threats also. When there is a positivity in a business or grow business growing, there's some threats like in education system we can see. It was in a boom period before. Then after COVID came, we all came to uh, work from home, almost everybody, and the teachers and students both are having problems by sitting home. That is the threats, or usually we can say that now in the education institutions. Hence, consisting of six factors: political, legal, economical, social, culture, technological, global, and nature. These are the external forces that influence the business. A lot external forces that influence the business a lot, because climate influences by, if there is thunderstorm and there is flood, then we cannot do the production and all. And political legal assets, the taxation policies, government's new policies, economy may be low, recession may occur, and social cultural, there will be some changes in the culture, maybe recently happened. Technological, there may be many advancement in technology, uh, new type of product, machines come. It's global, it's all over the world. And natural ways can be, factors can be. Importance of business environment, जरूरत क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट का. सो हम लोग वो पढ़ेंगे एक्टिव एंड अलर्ट. हमें सबका एक्टिव एंड अलर्ट होना चाहिए. अभी कुछ थ्रेट्स आने वाला है, मतलब एजुकेशन में हम लोग देखेंगे तो कोविड आया, सब लोग बंद करके घर पे ही बैठ गए. तभी एजुकेशन नहीं हो पाता था, पर जूम, गूगल मीट प्लेटफॉर्म सब एक्टिव हुआ, और हमको हमारा जो एजुकेशन फैसिलिटी हो, हमको फैसिलिटेट करना पड़ा, नॉट एफिशिएंटली बट ओके टाइप. हाँ, अच्छा अच्छा. अभी क्योंकि ऑनलाइन था, उसके लिए बहुत लोगों को अच्छा मार्क भी मिला एग्जाम में, तो दैट वाज आल्सो गुड. उसका अच्छा पॉजिटिव था वो. दैट वाज अ पॉजिटिव पार्ट ऑफ इट. सो अगला, कीपिंग बिजनेस फ्लेक्सिबल एंड डायनामिक. ये रिजिड नहीं होना चाहिए, कुछ रूल्स रिजिड नहीं होना चाहिए. हम जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है वैसे हम भी चेंज करना होगा. अभी लाइफ में हमारा एक दोस्त हमको, अभी दोस्त नहीं है हम लोग, तभी हम लोग को छोड़ के चेंज करके हम लोग दूसरा कोई नया न्यू फ्रेंड्स को ढूंढना चाहिए, ना कि वो ओल्ड फ्रेंड्स के लिए हम लोग वेट करेंगे या रोते रोते रहेंगे क्या ओल्ड फ्रेंड्स गया या वैसे नहीं. और डायनामिक होना चाहिए और ज़्यादा इफेक्टिव होना चाहिए, फ्लेक्सिबल, और मतलब एक गया तो दूसरा वैसे सोच के
और ज़्यादा हमारा जो एनर्जी यूज़ करना है, मतलब ना मैं मतलब मरा हुआ हूँ, मर गया मैं, सो रहा हूँ, ऐसे नहीं, और एनर्जेटिक होना चाहिए। और आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ, हमारा स्ट्रेंथ क्या रहेगा, एक एजुकेशन का स्ट्रेंथ है, स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, इन रिटर्न नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इन रिटर्न उनको जो फीस मिलता है उसमें से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को इतना टैक्सेशन नहीं है, तभी उनको स्ट्रेंथ है, और उनको दैट कैन बी यूज्ड फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन, उनका फैसिलिटीज इंक्रीज कर सकते हैं, दैट विल बी स्ट्रेंथ ऑफ एजुकेशन फैसिलिटी। आइडेंटिफाइंग द वीकनेस ऑफ द गवर्नमेंट, हाँ हमारा क्या ड्रॉबैक्स है। अभी हम एक ह्यूमन बीइंग, मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मेरा स्ट्रेंथ है, मैं बोल सकता हूँ, मैं आपको पढ़ाने के लिए मेरे से हो रहा है, मतलब मेरे को एक्सप्लेनेशन स्किल्स है, तो वो मेरा स्ट्रेंथ है। और मैं पियानो प्ले करता हूँ, वो भी मेरा स्ट्रेंथ है। और क्या बोल सकते हैं, और मैं हाँ पढ़ाना बोल सकता हूँ, पियानो प्ले कर सकता हूँ। और मेरा वीकनेस क्या है, मेरा वीकनेस मेनली हैंड राइटिंग है मेरा, खुद का मैं बोल रहा हूँ, जो है हैंड राइटिंग है मेरा वीकनेस, तो वो एक वीकनेस है मेरा, तभी वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे इन बिजनेस एनवायरनमेंट से। आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज, अभी अभी एजुकेशन सिस्टम देखेंगे अपॉर्चुनिटीज देखने के लिए, तभी हमारा एजुकेशन में अपॉर्चुनिटीज अभी क्या हुआ, एजुकेशन में अभी हम लोग को मालूम पड़ा कि हाँ हम अभी हॉलीडे में भी चाहिए तो घर पे लेके घर पे ही बैठ के क्लास कर सकते हैं। कोई टीचर को एक्स्ट्रा क्लास लगाना है, मतलब छुट्टी है फिर भी मैम को पढ़ाना है, तभी मैम क्या करेंगे जूम मीटिंग का लिंक भेजेंगे और आपको पढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटी है, एक्स्ट्रा जो है आपको स्टडीज विदाउट एनी प्रॉब्लम आपको मिलेगा फ्यूचर में भी। अभी कुछ हॉलीडे है या कुछ फ्लड हो गया, अभी हम टीचर्स को आ नहीं पाएंगे स्कूल, तभी क्या करेंगे, विदाउट हॉलीडे मैम या टीचर्स को जूम लिंक लेके आपको पढ़ा सकते हैं। और प्रॉपर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, एक प्रॉपर प्लानिंग और मैनेजमेंट होना चाहिए बिजनेस में, फिर तभी ये जो फैक्ट्री है या एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है वो सक्सेसफुल होता है। ताकि विदाउट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट हमारा कुछ भी नहीं होगा। एग्जाम्पल, अभी मैन्युफैक्चरिंग हम ओसीएम का सेकेंड चैप्टर में हम लोग का जो था फैक्टर्स ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ फंक्शंस ऑफ बिजनेस, हाँ वही कुछ था सेकेंड चैप्टर ओसीएम, आई रिमेम्बर सेकेंड चैप्टर में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, वो सब हम लोग पढ़ना है, तभी वो उसमें प्लानिंग मैनेजमेंट उसमें वो तभी हमारे पास था द बेसिक फंक्शन ऑफ अ फंक्शन ऑफ बिजनेस, तभी बेसिक फंक्शन ऑफ बिजनेस इज टू प्लान, प्लानिंग इज द बेसिक नेसेसरी ऑफ द बिजनेस। तभी लिमिटेशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, हमारा कितना अपॉर्चुनिटीज है उतना लिमिटेशंस भी बिजनेस एनवायरनमेंट में, अभी में हम लोग इम्पोर्टेंस कर रहे थे, अभी इसका लिमिटेशंस देखेंगे। Do not foretell the future and also does not help in avoiding uncertainties. भी हम लोग बिजनेस का लिमिटेशन क्या है, हम फ्यूचर में क्या हो सकता है आप बोल नहीं सकते। हमारा कोविड का पहले बोल सकते थे हाँ ये होगा, पर वो कोविड आने के बाद बहुत फैक्ट्रीज बंद हो गया, ओनली एसेंशियल को ही अलाउ किया था, बाकी सब बिजनेसेस ऑलमोस्ट 6 या 7 मंथ के लिए बंद था, फिर 50% में चालू करने के लिए नया रूल्स आया। तो हम लोग को कभी फ्यूचर में बोल नहीं सकते हाँ ये होगा, शायद अगला बार हम लोग कोविड सब गया और एक 10 साल के बाद फिर से कोविड आ गया तो हम बोल नहीं सकते, तभी हम पहले ही सोच नहीं सकते। पर वी कैन नॉट डू अवॉइड अनसर्टनिटीज, जो आना चाहिए वो जो हमारे जीवन में आएगा वो आएगा, हम लोग कितना भी ट्राई करो कुछ भी करो कुछ हो नहीं वाला है, कुछ उसमें हमारा जो हो गया हो पाएगा हम बोल नहीं सकते, हो पाया तो भी हम उसके लिए कुछ कर नहीं सकते, उसके लिए हम लोग फ्यूचर के लिए नहीं ट्राई सोचना कि अभी करंटली क्या कर सकते हैं, वो हम सोचना चाहिए। डस नॉट गारंटी अ फर्म इफेक्टिवनेस, अभी हमारा
शेयर मार्केट्स भी देख लो, अब अभी थोड़ा अच्छे से चल रहा है सब, और स्पेशली ऑटोमोबाइल्स, बिकॉज ये दशहरा टाइम में सब लोग ऑटोमोबाइल से थे। अभी थोड़ा दिन का बाद वो शेयर सब डाउन हो जाएगा, क्यों? क्योंकि दशहरा सब हो जाएगा, सब लोग ज़्यादा भी व्हीकल्स नहीं खरीदेंगे, तो उसके लिए उसका एक्सपीरियंस हो सकता है। एनवायरमेंटल स्टडी एनालिसिस मेक्स मैनेजर्स टू कॉन्शियस। हाँ, जो एनवायरमेंटल स्टडीज है, एनालिसिस मेक्स मैनेजर थोड़ा स्ट्रिक्ट और थोड़ा धीमी तरीके से देखेगा, क्योंकि एनवायरनमेंट का स्टडी करके ही मैनेजर सब टाइम डिसीजन लेगा, ना कि वो जंप करके डिसीजन लेगा, क्योंकि कुछ भी प्रॉब्लम बीच में हो सकता है। उसके लिए वो सोच समझ के उसका जो डिसीजन है वो लेगा। और अभी क्लासिफिकेशन कंपोनेंट्स ऑफ द बिजनेस है, तभी दो कंपोनेंट्स है एक बिजनेस एनवायरनमेंट, जो इंटरनल है और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब जो इनसाइड द बिजनेस, और एक्सटर्नल जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, आउट ऑफ अ कंट्रोल, एट लिमिटेड एक्सटेंट कर सकते हैं, तो भी थोड़ा इतना हम लोग ज़्यादा कर नहीं सकते। और इंटरनल एनवायरनमेंट जो है हमारा हाथ में है, वो हम कैसे भी चाहिए हम वो कंट्रोल कर सकते हैं, पर एक्सटर्नल जो है हम कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। एग्जाम्पल इंटरनल का एनवायरनमेंट का है फिनेंशियल कैपेबिलिटीज, जो हमारा फिनेंस हम डिसाइड करेंगे। फिनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ेंगे कि कैसे कैपिटल रेस कर सकते हैं, हाफ डिबेंचर्स और हाफ शेयर मार्केट्स या फुल शेयर मार्केट्स, हाफ डिबेंचर टर्म लोन, कैसे वो डिवाइड कर सकते हैं। मार्केटिंग कैपेबिलिटीज, मार्केट का ये क्या है, कंडीशन क्या है, हम उसमें क्या कर सकते हैं वो सब। ऑपरेशन कैपेबिलिटीज मतलब मार्केटिंग मतलब ये मतलब एडवर्टाइजमेंट, एक्सटर्नल एडवर्टाइजमेंट। ऑपरेशन मतलब जो मैनेजर वर्क मैनेजर जो करता है, उसका वर्कर्स जॉब करते हैं, तो उनका क्या हो रहा है, कैसे प्रोडक्शन चल रहा है, क्या चल रहा है, वैसे सब ऑपरेशन कैपेबिलिटीज। पर्सनल कैपेबिलिटीज जो खुद का लेवल का है, खुद का लेवल में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, वो सब। जनरल मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज मतलब जनरली क्या होता है, जनरली मैनेज करना, मैनेजर जो मैनेज करता है, एक प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंशियल मैनेजर, फिर क्या ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर, ऑल ओवर हेड, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर, वैसे सब। ओके। और एक्सटर्नल फैक्टर में आएंगे माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो मीन्स स्मॉल एनवायरनमेंट, अ स्मॉल पार्ट, और मैक्रो मतलब अ लार्ज एरिया, एग्रीगेट। माइक्रो स्मॉल, मैक्रो ह्यूज, और एग्रीगेट। इंडिविजुअल, माइक्रो मतलब इंडिविजुअल, मैक्रो मतलब एग्रीगेट। हम जो इकोनॉमिक्स 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, हमको दो इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब कंज्यूमर, हमारा एक कंज्यूमर का डिमांड, वो सब देखते हैं। प्रोडक्ट कौन सा एक प्रोडक्ट का हम लोग डिमांड क्या है, वो सब देखते हैं। मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स, कितना लोग हमारे बीच में ऐसा एजेंट वर्क करते हैं। कॉम्पिटिटर्स, हमारा कॉम्पिटिटर्स क्या है, उनसे कैसे हम डिफरेंट हो सकते हैं। हाँ, एवरी टाइम वी शुड बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। हम सब टाइम एक जन का जैसा नहीं होना चाहिए, हम डिफरेंट रहेंगे। खुद का एंटिटी डिफरेंट, everybody identifies a person who is different, not a person who acts like everybody. So that is the competitor. और मैक्रो एनवायरनमेंट जो है सोशल एनवायरनमेंट, जो सोशली सब है, सोशल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो पॉलिटिक्स, जो हमारे रूलिंग पार्टी का टैक्सेशन पॉलिसी, वो सब। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मतलब हमारा मनी रिलेटेड, अभी कोविड है उसके लिए बहुत लोगों को उनका जॉब लॉस्ट हो गया था, अभी उनका जो है इकोनॉमिक्स, क्या कर सकते हैं उन लोग, नया जॉब ढूंढना पड़ा, कोई लोग को मिलता भी नहीं है वैसे। रेगुलेटरी एनवायरनमेंट मतलब उनका कितना ये 10-20 हो सकता है वैसे। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट वो जो है इंक्रीज होते रहता है, उससे हम लोग। माइक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी एवरी टाइम चेंजेस, एवरी ईयर ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट से हमारा एक एक प्रोडक्ट इम्प्रूव होते जाता है, बिकॉज ऑफ द रिसर्च एंड डेवलपमेंट area of the company. So that is important for the improvement of a business.
सो हम इधर